ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਰਾਮ, ਸਕੂਨ ਤੇ ਚੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਥੱਕੇ ਹਾਰਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਝਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ ਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੰਦਨਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਣ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਰਵਾਹਾ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੁੱਕ ਆਫ ਸਾਮ, ਵਰਸ 39 ਸਾਮ ਹੈ ਤੇ ਵਰਸਸ 7 to 12। ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। 8 ਯਹੋਵਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਮ੍ਰਿਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਯਹੋਵਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਉਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਹੋਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਵਸ਼ੀ ਹਨੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ, ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 3 ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, 3 ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਡ ਦਾ ਫਾਦਰ, ਗੋਡ ਦਾ ਸਨ ਐਂਡ ਗੋਡ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਇਹ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਸੱਚਾਈ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਲਾ ਨਸ ਕੇ ਕਿਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੇਰੀ ਤੋਂ ਛੁਪ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਨਸਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਈਏ। ਆਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ,
हमेशा की तरह खड़े होइए, अखा बंद करिए, आकाश वाल हाथ करके मिल के प्रभु जी के इस भजन बंदगी शामिल होइए। मेरा ईमान है परमेश्वर पिता जी सिंहासन तुहाडे घर विच उत्थे लगा होया, जिथे तुसीं साडे नाल शामिल हो इत्थे भी हैगे ने साडे नाल। सो उन्हां दी आमद नूं एक्सेप्ट करिए, उन्हां दा स्वागत करते हुए उन्हां दी खुशी विच गीत गाइए। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नसा। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते ओते है तुम्ही। मैं चढ़ जावा जे आसमाना दे उते ओते है तुम्ही। बचावा बिस्तरा पाताल दे विच होते हैं तुम्ही। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, समुद्रों पार जा उतरा सुबह दे पंखा नूं फैला। समुद्रों पार जा उतरा सुबह दे पंखा नूं फैला। ते होते भी तेरा हथ मैनू या रब विखावेगा। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आपे मेरी भी। खुदाया तू करेगा दस्तगीरी आपे मेरी भी। तेरा हथ सज्जा उस पाताल विच हो वे मदद मेरी। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, जे मैं आखा के मैनू गुप अंधेरा हुण छुपावेगा। जे मैं आखा के मैनू गुप अंधेरा हुण छुपावेगा। मेरे गिर दे अंधेरा भी तदों चानन हो जावेगा। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, नहीं है सामने तेरे अंधेरा गुप अंधेरा भी नहीं है सामने तेरे अंधेरा गुप अंधेरा भी। अंधेरी रात तेरे सामने है वांग चांदनी। खुदाया तेरी रूतों में भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी
तरफ नो नशा खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ एक मिल के होर गीत गाइए, पवित्र आत्मा गाइए। उतर आ उतर आ उतर आ, ऐ रूहे पाक उतर आ। आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, गीत नवा दिल विच पा। उतर आ उतर आ उतर आ, ऐ रूहे पाक उतर आ। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, गीत नवा दिल विच पा। गीत नवा दिल विच पा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे। चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मैनू खिला दे, कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मैनू खिला दे, कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। आत्मक वस्त्र मैनू पहना दे, लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा दे। आत्मक वस्त्र मैनू पहना दे, लड़ना शैतान नाल मैनू सिखा दे। मौत उत्ते पावा मैं फसा, मौत उत्ते पावा मैं फसा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, ए रूहे पाक उतरा। पाक रूह मेरे दिल दे अंदर, बन जावा मैं तेरा मंदिर। पाक रूह मेरे दिल दे अंदर, बन
जावां मैं तेरा मंगल अपना दास सिखला, अपना दास सिखला। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। हालेलुया हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਸਤੀਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ। प्रभु जी के पावन पवित्र सबसे सुंदर सबसे अच्छे नाम में मैं आपको बरकत देता हूं। आज की इस सभा में, आज की इस मसीहा मंडली में अब कलाम प्रभु के पवित्र वचन पढ़ने और सुनने का समय है। तो आइए हमेशा की तरह आंखें बंद करते हैं 10 सेकंड के लिए। अपने आप को दुनियावी बातों से अलग करके उन चिंताओं, उन प्रॉब्लम्स जो हमारे पीछे लगी हुई हैं, उनसे अपना मन हटा के प्रभु की तरफ फोकस करते हैं। आइए सिर झुकाएं, आंखें बंद करें। आइए आज के वचन की तरफ अपना ध्यान लाते हैं। दुनिया के हर धर्म ग्रंथ में, दुनिया के हर फेथ में स्वर्ग और नरक का जिक्र है, लेकिन आजकल का इंसान ज्यादा इन बातों पे विश्वास नहीं करता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे अगर पूछा जाए कि स्वर्ग और नरक क्या है, तो ना तो वो बता पाते हैं, ना ही उनका विश्वास होता है कि ऐसी कोई जगह है। हालात ऐसे बदल चुके हैं कि जो हमारे मसीह भाई बहन हैं वो भी इन बातों पे उस तरह विश्वास नहीं करते। वो जब बाइबल में पवित्र वचन में पढ़ते हैं स्वर्ग के बारे में, तो वो सोचते हैं कि ये स्वर्ग और नरक जो है, दिस इज काइंड ऑफ साइन, ए काइंड ऑफ सिंबल, ए काइंड ऑफ थॉट जो परमेश्वर ने हमें दी है। अच्छी बात के लिए स्वर्ग बोला है, बुरी बात के लिए नरक बोला है। वो ये सोचते हैं। बट माय ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु के वचन में अगर हम जाके ध्यान से देखें तो पवित्र बाइबल हमें इस बात का प्रमाण देती है कि हेवन इज रियल, हेवन इज एज रियल एज गॉड इज रियल। परमेश्वर के वचन में हमें यह पता लगता है कि स्वर्ग उसी तरह वास्तविक है जैसे हमारे परमेश्वर, हमारे खुदा वास्तविक है। माय ब्रदर्स सिस्टर, इनफैक्ट पवित्र बाइबल हमें यह भी बताती है कि दिस इज द फाइनल जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल क्रिएशन, जो स्वर्ग और नरक है। आइए देखते हैं बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 14, इब्रानिय 13:14। फॉर दिस वर्ल्ड इज नॉट आवर परमानेंट होम। ये जो संसार है ये हमारा परमानेंट, हमेशा का घर नहीं है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ए हेवन yet to come. We are looking forward to a home yet to come. हम आज भी उस घर की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो भविष्य में आने वाला है। इसी तरह 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 1, 2 Corinthians 5:1, We know that if the earthly tent we live in is destroyed. प्रभु का वचन कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, तो ये दुनियावी टेंट है जिसमें हम रहते हैं, जब ये खत्म हो जाएगा, we have a building from God. हालेलुया। हमारे पास परमेश्वर के द्वारा एक भवन हमें दिया गया है, an eternal home in heaven. हमारा अवधि घर जो स्वर्ग में है, not built by human hands, जो इंसानों के हाथों से नहीं बना हुआ।
माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हेवन इज आवर इटर्नल होम, हमारा सदा का घर, हमारा सदैवी घर स्वर्ग है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, तो उस घर के लिए जो हमारा स्वर्ग में है, जहां हमने जाके अवधि जीवन बिताना है, एवरलास्टिंग लाइफ जहां हमने स्पेंड करनी है, should not we be excited to know about that heaven and to go to that heaven? My brothers and sisters, अगर मान लीजिए आप कनाडा में रहते हैं, आपने कभी लंदन इंग्लैंड विजिट नहीं किया और आप प्लान बना रहे हैं लंदन इंग्लैंड जाने का, तो जाने से पहले हम लोग कितने एक्साइटेड होते हैं, लंदन के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं, ये देखते हैं कि वहाँ कौन कौन सी अच्छी जगह है जहाँ हम लोग विजिट कर सकते हैं, वहाँ किस किस से जाके मिलेंगे। हमारे मन में आता है अगर हम इंग्लैंड जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, तो वहाँ की महारानी का महल भी देखें, सिर्फ महल ही ना देखें, महारानी को खुद मिल के आए। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी आर सो एक्साइटेड टू गो टू दोज प्लेसेस जो हम प्लान करते हैं छुट्टियों में जाने के लिए। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, इसी तरह वी शुड बी, बीइंग ए क्रिश्चियन, बीइंग ए बिलीवर, वी शुड बी एक्साइटेड टू गो टू हेवन एंड वी शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दैट होम व्हिच इज इन हेवन। तो आज का जो प्रभु हमें संदेश दे रहे हैं, आज का जो मैसेज दे रहे हैं, उसका टाइटल है हेवन आवर फाइनल डेस्टिनेशन। हेवन आवर फाइनल डेस्टिनेशन, स्वर्ग हमारी अंतिम मंजिल। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, अगर हम सोचते हैं कि हेवन एक सिर्फ दिमाग की उपज है, हमारी एक सोच है, तो ये गलत है। पवित्र बाइबल के अनुसार, पवित्र बाइबल में स्वर्ग के बारे में बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हमें देखने को, पढ़ने को मिलते हैं। अगर हम देखें तो पवित्र बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों को मिला के 66 बुक्स हैं। उन 66 बुक्स में से 54 बुक्स में से हेवन का जिक्र आया। अगर हम सिर्फ एक ही किताब का एग्जांपल लें, जो बुक ऑफ मैथ्यू है, जो न्यू टेस्टामेंट में है, एक ही किताब में जाके देखें तो कम से कम 70 बार हेवन का जिक्र आया। सो माय ब्रदर्स सिस्टर, किस लिए है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक अथॉरिटेटिव सोर्स दिया है, एक विश्वसनीय बुक दी है, जहां से जाके हम स्वर्ग के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। तो आइए आज इस पे गौर करते हैं, आइए देखते हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हम सब जानते हैं, जब हम बुक ऑफ जेनेसिस पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट की पहली किताब पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि परमेश्वर हमें अपनी इमेज में बनाया था, व्हिच मींस अपने जैसा बनाया था। और सिंस गॉड इज इटर्नल, वो पहले भी थे, आज भी हैं और अंत तक रहेंगे, इसी तरह परमेश्वर ने हमें इटर्नल लाइफ के बनाया था। ही मेड अस टू लास्ट फॉरएवर, हमेशा तक हम रहे। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, कुछ समय हम यहाँ बिताएंगे, लेकिन ज्यादातर समय हम कहीं और बिताएंगे। माय ब्रदर्स सिस्टर, आर यू नॉट एक्साइटेड टू नो दीज थिंग्स? हमारी यही उम्मीद है। हमारी उम्मीद क्या है कि ये धरती का जो हमारा जीवन है, ये कुछ दिनों का है, कुछ सालों का है। इसके बाद हमने उस परमानेंट घर में जाना, उस हाउस में जाना जहां हमने बाकी की जिंदगी बितानी है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हमने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, बिलियंस एंड बिलियंस, करोड़ों अरबों साल वहां पे बितानी है, उस जगह पे जिस जगह पे ना कोई सारो है, ना कोई सैडनेस है, ना कोई सिकनेस है, ना कोई सफरिंग है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जिंदगी ये नहीं है जो हम देखते हैं। धरती की हमारी जिंदगी 70, 80, 90 साल की है, लेकिन उसके बाद हमने मिलियंस एंड मिलियंस, ट्रिलियंस ट्रिलियंस ईयर्स हमने स्वर्ग में बिताने हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर, वी आर गोइंग टू लास्ट फॉरएवर। माय ब्रदर्स सिस्टर, हम मुसीब लोगों के लिए जो विश्वासी हैं, उनके लिए जो मौत एक एंड नहीं है, एंड ऑफ आवर स्टोरी नहीं है। इट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम दिस प्लेस टू हेवन। यहाँ से हमने स्वर्ग में जाना है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, एक दिन आएगा जब हमारा ये दिल धड़कना बंद कर देगा, हमारी सांसें रुक जाएंगी, लोग कहेंगे वो पूरा हो गया, वो कंप्लीट हो गया, वो पास्ट अवे हो गया। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, वो हमारा अंत नहीं होगा, हमारे इस शरीर का अंत होगा, इस तंबू का अंत होगा जो खोल हमने पहना हुआ। जैसे ये कोट भूपेंद्र नहीं है, भूपेंद्र ने कोट पहना हुआ, इसी तरह ये शरीर भूपेंद्र नहीं है, भूपेंद्र ने ये शरीर पहना हुआ। तो हमारा अंत नहीं होगा, हमारे शरीर का अंत होगा। दिस इज द गुड न्यूज। और गुड न्यूज क्या है? कि वी विल लिव फॉरएवर, वी विल लिव फॉरएवर। Why? Because God wants us to live with Him eternity, until eternity. हम चाहते हैं, प्रभु परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी eternity तक उनके साथ टाइम स्पेंड करें। This is the reality life and this is the good news. जो हमारा सुसमाचार है, वो सुसमाचार यही है। So my brothers and sisters, बेसिक कुछ बातें हम अपने आप को रिमाइंड करा लें। पहली बात तो ये है कि
परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया था कि वो हमें प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वापस में हम भी उनको प्यार करें। सेकंड थिंग ये है कि हमको उन्होंने बनाया था टू लिव फॉरएवर, टू लास्ट फॉरएवर। और तीसरा माय ब्रदर्स सिस्टर्स, दो ही जगह है जहाँ जाके हम हमेशा रहेंगे, या स्वर्ग में या नरक में। इन दो के अलावा और कोई जगह नहीं है जब हम ये शरीर छोड़ेंगे। और माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हम कहाँ अपनी इटर्नल लाइफ बिताएंगे, स्वर्ग में या नरक में, उसकी चॉइस हमारे पास है। आज है जब इस धरती पे है, आज हम चूज कर सकते हैं कि हम लोग कहाँ अपना इटर्नल जीवन बिताएंगे। एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस मे बी शॉकिंग टू यू, बट पवित्र बाइबल के अनुसार देयर इज नो सेकंड चांस, देयर इज नो रीबर्थ। दोबारा हमें ना मौका मिलेगा, ना हमारा जीवन दोबारा हमें मिलेगा, एक ही मौका मिला हुआ। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो मेरे विश्वासी भाई हैं, बहन हैं, इस समय जो सुन रहे हैं, मैं उनको आज एक बार फिर ये बात की गवाही देना चाहता हूँ, गारंटी देना चाहता हूँ, बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, योर एंट्री टू हेवन इज ऑलरेडी सिक्योर्ड, ऑलरेडी गारंटी। आइए देखिए पवित्र बाइबल में प्रभु के वचन पढ़ के क्या लिखा है। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, यूहन्ना 14:6, प्रभु यीशु कह रहे हैं, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सच हूं, मैं ही जीवन हूं। नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी। कोई भी मेरे थ्रू आने से बगैर परमेश्वर पिता के पास नहीं आ सकता। सो जिस दिन हमने प्रभु यीशु को अपना ईश्वर, अपना मुक्तिदाता माना था, उनके पीछे चलना शुरू किया था, वो प्रार्थना की थी, तो हम प्रभु जी के स्वर्ग में दाखिल होने के अधिकारी बन गए थे। इसी तरह बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 12, रसूलों के कर्तव्य 4:12, देयर इज साल्वेशन इन नो अदर, नो वन एल्स। किसी और के नाम में मुक्ति नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु के नाम में मुक्ति है। गॉड हैज गिवन नो अदर नेम अंडर हेवन। परमेश्वर ने, हमारे यहोवा खुदा ने कोई भी ऐसा और नाम नहीं दिया स्वर्ग के नीचे, बाय विच वी मस्ट बी सेव्ड, जिसके द्वारा हम बचाए जाएं। एक ही नाम है प्रभु यीशु, जिसके द्वारा हम बचाए जाएंगे। इसी तरह अगेन बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 31, रसूलों के कर्तव्य 16:31, प्रभु जी ने अपने वचन में लिखा है, बिलीव इन लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु में विश्वास करो, एंड यू विल बी सेव्ड, और आप बचाए जाओगे, आपको मुक्ति मिलेगी। यू एंड योर हाउस होल्ड, सिर्फ आप ही नहीं, आपका पूरा खानदान बचाया जाएगा। किस तरह? जब प्रभु में विश्वास करोगे। और इसी तरह एक और हवाला देना चाहूंगा, ताकि मेरे भाई बहन जिनके मन में कोई भी किसी तरह की शंका है, आज खत्म हो जाए। लास्ट वर्स पढ़ने जा रहा हूँ, बुक ऑफ जॉन, 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 11 एंड 12, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वर्स 11 और 12, एंड दिस इज द टेस्टिमोनी। ये एक साक्षी है, ये गवाही है। क्या गवाही है? गॉड हैज गिवन अस इटर्नल लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, एंड दिस लाइफ इज इन हिज सन। और ये जो अनंत जीवन है किसमें है? उसके बेटे प्रभु यीशु में है। Whoever has the son has life. हालेलुया। जिसके पास भी परमेश्वर का ये बेटा है, प्रभु यीशु मसीह, जिसने उस बेटे को, पुत्र को धारण किया है, जीवन भी उसी के पास है, और जिसने उसको धारण नहीं किया, उसके पास जीवन भी नहीं है। So my brother and sister, we as a believer in Lord Jesus Christ, we do not need anything. Everything has been done, everything has been planned, and we are going to spend our life after we die in eternity along with God. प्रभु जी के पास बैठ के हम बाकी की जिंदगी हम बिताएंगे। So my brother and sister, don't say you do not know much about heaven. Don't say you are not excited. Say that you are excited to go to a place which God has already prepared for us. My brothers and sisters, परमेश्वर के उस भवन में, जो भवन हमारे लिए बनाया गया, we should always look forward to go to that heaven. आज मैं आपके सामने 7 ऐसी बातें लेके आऊंगा जो आपके उत्साह को बढ़ाएंगी। You will be more excited to go to your eternal home. शायद आपने बातें ना पढ़ी हों, पढ़ी भी हों, लेकिन आज आपको मैं याद कराना चाहता हूँ, ताकि आपके अंदर उत्साह, आप उत्साहित हों, आपके अंदर उत्साह आए, आप प्रभु के उस भवन में जाने की प्रतीक्षा करें जो प्रभु ने हमारे लिए बना के रखा है। सो फर्स्ट रीजन, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14, यूहन्ना अध्याय 14,
प्रभु यीशु मसीह जी ने हमसे कहा था, माई फादर्स हाउस हैज मैनी रूम्स। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के घर में बहुत सारे कमरे हैं। परमेश्वर के घर में बहुत सारे कमरे हैं। अगर ऐसा ना होता तो मैं आपसे ऐसा ना करता। आई एम गोइंग देयर टू प्रिपेयर ए प्लेस फॉर यू। मैं वहां जा रहा हूं आपके लिए एक स्थान तैयार करने। एंड इफ आई गो एंड प्रिपेयर ए प्लेस फॉर यू, और अगर मैं जाऊंगा और वहां पे आपके लिए रहने का स्थान तैयार करूंगा, आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगा, एंड टेक यू विद मी, और मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, सो दैट यू आल्सो बी वेयर आई एम, ताकि आप भी वहां पे रहें जहां हम रहते हैं। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारा अवधि घर वहां पे है, स्वर्ग में। प्रभु जी बना रहे हैं, प्रभु जी हमको लेने आएंगे, लेके जाएंगे, ताकि बाकी की जिंदगी हम वहां बिताएं। वी आर ट्रेवलर्स ऑन दिस अर्थ। हम इस धरती पे सिर्फ यात्री हैं। ये हमारा परमानेंट घर नहीं है। हमारा परमानेंट घर वहां पे है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, वो घर जो हमारे लिए बनाया जा रहा है, वो इस तरह बनाया जा रहा है कि जब वहां पे जाएं तो हमें वो अनंत खुशी मिले जो वहां पे मिल सकती है। हमें वो एट होम फील करें। माय ब्रदर्स सिस्टर, ये हमारे प्रभु जी कर रहे हैं। सो फर्स्ट रीजन you should be excited, or we should all be excited, is that our home is in heaven. That हमारी एक्साइटमेंट है। जब बिल्डर से हम कोई नया घर बाय करते हैं, जब घर बन रहा था, हमें कितनी एक्साइटमेंट होती है। जाके रोज देखते हैं कितना बना, क्या हुआ, दीवारें बन गई, छत बन गई, कलर कैसा हुआ, दरवाजे कैसे बने। इसी तरह हमारे ब्रदर सिस्टर, we should be excited to see that house, to visit that house. Second part, प्रभु यीशु मसीह से जब चेलों ने पूछा था कि आप हमें प्रार्थना करना सिखाएं, तो उन्होंने हमें एक प्रार्थना दी थी जिसे हम लॉर्ड्स प्रेयर कहते हैं। बुक ऑफ मैथ्यू में ये प्रार्थना है। उस प्रार्थना की शुरुआत कैसे की थी? वर्स 9, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9। मत्ती की इंजील अध्याय 6 वर्स नंबर 9। एंड दिस इज देन हाउ यू शुड प्रे। प्रभु जी कहते हैं इस तरह आप प्रार्थना किया करो। क्या कहते हैं? आवर फादर इन हेवन, हॉलोड बी योर नेम। हे हमारे पिता जो आप स्वर्ग में हो, आपका नाम पवित्र माना जाए। My brothers and sisters, the second thing to be excited is that our heavenly Father is living in that heaven जिस पे हम लोग जा रहे हैं। My brothers and sisters, second बात ये है कि our heavenly Father is there. My brothers and sisters, बार बार बुक ऑफ मैथ्यू में इस तरह के जिक्र आया। My brothers and sisters, जिस तरह हम अगर इंग्लैंड विजिट करें तो हमें पता वहाँ इंग्लैंड की रानी रहती है, और हमारे मन में आएगा कि इंग्लैंड की रानी से जरूर मिल के आए, देख के आए। इसी तरह हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारे परमेश्वर पिता वहाँ रहते हैं, उनके पास जाने की हमें एक्साइटमेंट होनी चाहिए। तीसरा रीजन, अगेन बुक ऑफ जॉन वर्स 38, यूहन्ना अध्याय 6 वर्स 38। प्रभु कह रहे हैं, आई हैव कम डाउन फ्रॉम हेवन नॉट टू डू माई विल बट डू द विल ऑफ हिम हु सेंट मी। प्रभु जी कहते हैं कि मैं स्वर्ग से आया हूं अपनी इच्छा करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी इच्छा करने के लिए जिसने मुझे यहाँ भेजा है। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, थर्ड रीजन टू बी एक्साइटेड इज आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जिन्हें हम पूछते हैं, जिनके हम पीछे चलते हैं, इनके पीछे हम लोग अपनी क्रूस लेके चल रहे हैं, वो भी वहां पे हैं। वो स्वर्ग से आए थे और इसी तरह वो स्वर्ग में वापिस उठा लिए गए थे। अगर प्रभु का वचन आप पढ़ें तो बुक ऑफ मार्क में आपको पता लगेगा, जब वो गुड फ्राइडे वाले दिन क्रूसीफाई हुए, फिर ईस्टर वाले दिन उठाए गए, तो उसके बाद बहुतों को उन्होंने दर्शन दिया, बहुत से उनसे बातें की और जाति बारे एक हुक्म दिया। वर्स 15 में, गो इनटू ऑल द वर्ल्ड एंड प्रीच द गॉस्पेल टू ऑल क्रिएशन। दुनिया के कोने कोने में जाओ और ये सुसमाचार खुशखबरी का प्रचार करो। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं आपको ताकत देता हूँ, आप बुरी आत्माओं को निकालोगे, आप गैर जुबानों में बोलोगे, अगर कोई जहर वाली चीज आप पी जाएंगे तो आप पे असर नहीं करेगी, उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप सांपों को, बिच्छुओं को अपने पैरों से कुचलोगे। और ये कह के प्रभु जी के वचन के क्या हमें मिलता है? वर्स 19, आफ्टर द लॉर्ड जीसस हैड स्पोकन टू देम। इस तरह जब प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने शागिर्दों से बातें की, ही वॉज टेकन अप इनटू हेवन, वो स्वर्ग में उठा लिए गए, एंड ही सैट एट द राइट हैंड ऑफ गॉड, और वो परमेश्वर यहोवा खुदा के दाहिने हाथ जाके बैठ गए। सो माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आए थे, स्वर्ग ही गए हैं, और इस समय वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं, वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ही इज इंटरसीडिंग फॉर अस, नॉट ओनली आवर हेवनली फादर, आवर गॉड, आवर प्रभु यीशु मसीह भी वहां पे है। माय ब्रदर सिस्टर्स, ये हमारा तीसरा रीजन हुआ।
आइए अब चौथे रीजन की तरफ जाएं। माय ब्रदर एंड सिस्टर, बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20। बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20। बट आवर सिटीजनशिप इज नॉट इन हेवन। हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। हम इस धरती के नागरिक जरूर हैं, हम इस मुल्क के नागरिक जरूर हैं, लेकिन हमारी जो रियल सिटीजनशिप है दैट इज इन हेवन एंड वी ईगरली अवेट ए सेवियर फ्रॉम देयर। और हम उस मुक्तिदाता को बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं जो वहां से है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और आगे लिखा है, हु बाय द पावर ऑफ दैट इनेबल्स हिम टू ब्रिंग एवरीथिंग अंडर हिज कंट्रोल। वो जिसको वो शक्ति मिली, जिस शक्ति तो हर चीज दुनिया के अपने हाथ में कंट्रोल किया हुआ है, विल ट्रांसफॉर्म आवर लोनली बॉडीज। हमारी जो ये दुनियावी शरीर है उनको वो बदल देंगे, सो दैट दे विल बी लाइक हिज ग्लोरियस बॉडी, ताकि हमारी जो शरीर है उनकी तरह महिमा में शरीर बन जाए। सो माय ब्रदर सिस्टर, अनदर रीजन टू बी एक्साइटेड टू गो टू हेवन इज दैट आवर सिटीजनशिप इज देयर, नॉट हियर। माय ब्रदर सिस्टर, हम यहाँ पे फॉरेनर्स हैं, हम यहाँ पे एलियंस हैं, हम यहाँ पे यात्री हैं, पिलग्रिम्स हैं। हमारी परमानेंट सिटीजनशिप वहाँ पे है। जैसे माय ब्रदर सिस्टर, बहुत सारे हमारे भाई बहन जो इस समय सुन रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, हमारी सिटीजनशिप अब कनाडा की है, क्योंकि कनाडा में हम आ गए। कैनेडियन सिटीजन हमें पता है कि कितनी हमारे लिए फायदेमंद है। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ अगर हमारे पास कैनेडियन पासपोर्ट हो तो हमें वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वी हैव द बेनिफिट ऑफ हैविंग दिस सिटीजनशिप इन मैनी कंट्रीज। इसी तरह माय ब्रदर सिस्टर, वी शुड बी एक्साइटेड कि हमारी जो हेवनली सिटीजनशिप है वो इस धरती की नहीं है, इस शहर की नहीं है, इस मुल्क की नहीं है, वो परमेश्वर पिता के स्वर्ग की है। नंबर 5, अगेन बुक ऑफ लूका चैप्टर 10 में जाएंगे, लूका की इंजील अध्याय 10 में जाएंगे। सो हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह जी ने अपने शागिर्द बनाए थे, चेले बनाए थे 12, उसके अलावा उन्होंने 72 और शागिर्द बनाए थे और उनको अपनी सुसमाचार सुनाने के लिए जगह जगह भेजा था। 2 और 2 करके उनको भेजा था, 2 और 2 के 2 बाय 2 के ग्रुप में उनको भेजा था। तो जब वो वहां गए और प्रभु का प्रचार करके आए तो उस समय आके उन्होंने प्रभु से अपनी रिपोर्ट दी। क्या रिपोर्ट दी, आइए देखिए, पढ़ते हैं। बुक ऑफ लूका चैप्टर 10 वर्स 17। The 72 returned with joy। वो खुशी से वापस आए और आके प्रभु से क्या कहते हैं, लॉर्ड इवन द demons submit to us in your name। कहते हैं कितनी खुशी की बात है प्रभु जी, आपके नाम में तो भूत प्रेत डरते हैं, बुरी आत्माएं डरती हैं, हमारे अधिकार में आ जाती हैं। तो प्रभु जी ने आगे जवाब दिया था, I saw Satan fall like lightning from heaven। कहते हाँ, मैंने देखा था शैतान को बिजली की तरह गिरते हुए। और उसके बाद उन्होंने कहा था, I have given you authority to trample on snakes and scorpions। मैंने आपको अधिकार दिया है कि आप सांपों पे, बिच्छुओं को कुचलो। To overcome all the power of enemy, और दुश्मन की हर एक ताकत, शैतान की हर ताकत पे विजय पाओ, गलबा पाओ। Nothing will harm you। आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक बात कही थी, verse 20। However, do not rejoice। कहते हैं do not rejoice that the spirit submit to you। कहते हैं लेकिन इस बात पे खुश ना हो कि बुरी आत्माओं आपके अधिकार में है, आपसे डरती हैं, इसलिए खुश हो। बट rejoice that your names are written in heaven। इस बात पे खुश हो कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। My brother sister, the moment we accepted the Lord Jesus Christ, हमारा नाम नरक से निकाल के स्वर्ग में लिख दिया गया, स्वर्ग की बुक्स में लिख दिया गया, बुक ऑफ लाइफ में लिख दिया गया। मैं कई बार सोचता हूँ कि दुनिया में कितने सारे मसीह हैं, एक एक पल में कितने लोग प्रभु जी को अपना जीवन दे रहे हैं, कैसे उनके नाम यहाँ लिखे जाते होंगे स्वर्ग की किताबों में। तो मेरे मन में प्रभु जी ने एक विचार डाला, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दिस इज माई इमेजिनेशन, आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। जैसे आप जानते हैं मैं IT प्रोफेशनल हूँ, मैं एक बैंक के कंप्यूटर्स डिपार्टमेंट में काम करता था। तो मुझे लगता है कि वो जो बैंक्स हैं, बैंक के जो कंप्यूटर हैं इतने बड़े हैं कि मिलियंस एंड मिलियंस ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड वो हैंडल कर सकते हैं, इतने पावरफुल है। हमारा जो लैपटॉप है, हमारा जो डेस्कटॉप है, वो ट्रांजैक्शन हैंडल नहीं कर सकता इतनी, लेकिन बैंक्स के जो कंप्यूटर है वो हैंडल कर सकते हैं।
इसी तरह मैं सोचता हूँ कि वहां प्रभु के घर में, प्रभु के स्वर्ग में एक बहुत बड़ा कंप्यूटर लगा हुआ है। उस कंप्यूटर पे उनके स्वर्गदूत बैठे हुए हैं और एवरी सेकेंड जब कोई धरती पे प्रभु को अपना जीवन देता, उसका नाम क्लिक करके वहां से निकाल के वहां डाल दिया जाता है। हालेलुया। We are not we excited, are not we glad that our names are written in heaven? प्रभु ने स्वर्ग में अपनी किताबों में अपना नाम लिखा हुआ। हालेलुया। आइए नेक्स्ट रीजन की तरफ जाते हैं। रीजन नंबर 6, अगेन बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5, मत्ती की इंजील अध्याय 5 वर्स 9, ब्लेसेड आर द पीस मेकर फॉर दे विल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। कहते हैं जो शांति कराते हैं वो भाग्यशाली हैं, क्योंकि वही परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाएंगे। ब्लेसेड आर दोज हु आर परसिक्यूटेड, और जो बिकॉज ऑफ राइचियसनेस, जो धर्मी होने के कारण सताए जाते हैं वो भी बरकत वाले हैं। फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं के लिए है। ब्लेस्ड आर व्हेन पीपल इंसल्ट यू, ब्लेस्ड आर यू व्हेन पीपल इंसल्ट यू। प्रभु जी कहते हैं आप मेरे भाई बहनों, आप मसीह भाई बहनों, आप बरकत वाले हैं जब लोग आपकी निंदा करते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं। परसिक्यूट यू, जब आपको सताते हैं, एंड फॉल्सली से ऑल काइंड्स ऑफ इविल अगेंस्ट यू बिकॉज ऑफ मी, और मेरी वजह से, मेरे शागिर्द होने की वजह से आपके बारे में जो वो बुरी बातें बोलते हैं, ये सब बातें की वजह के अलावा आप ब्लेसेड हैं। तो आगे प्रभु जी हमें आदेश देते हैं वर्स 12 में, रिजॉइस एंड बी ग्लैड, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ, बिकॉज ग्रेट इज योर रिवॉर्ड इन हेवन, क्योंकि स्वर्ग में आपका जो रिवार्ड है, जो आपका जो इनाम है, वो बहुत ज्यादा है। फॉर इन द सेम वे दे परसिक्यूटेड द प्रॉफिट हु वर बिफोर यू। कहते हैं इसी तरह आपके आने से पहले, मेरे आने से पहले, आपके आने से पहले प्रभु के जो नबी थे उनको भी ऐसे ही सताया गया था। जैसे स्वर्ग में उनके लिए इनाम रखे गए हैं, ऐसे स्वर्ग में हमारे लिए भी इनाम है। भाई ब्रदर सिस्टर्स, आज धरती पे जब हम प्रभु जी के पीछे चलते हैं, ये सकड़ा रास्ता है। बहुत से लोग हमें बहुत बड़ा बुला कहते हैं, बहुत कुछ हमारे बातें में गलत बातें बोलते हैं। कोई बोलता है कि इसने पैसे की वजह से अपना धर्म बदल लिया, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। माय ब्रदर सिस्टर्स, दीज क्रिटिक्स आर अनकाइंड। ये जो हमारी आलोचना करते हैं उनके अंदर दया नहीं है, वो हमारे साथ काइंड नहीं है। बट माय ब्रदर सिस्टर्स, हमें इस बात पे खुशी करनी चाहिए कि ये हमारा इनाम इकट्ठा हो रहा है। जब हमें सताते हैं, वो हमें धरती पे सता रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से स्वर्ग में हमारा स्वर्ग इकट्ठा हो रहा है। तो हमें उन्हें खुशी खुशी माफ करना है, रिजॉइस होना है। माय ब्रदर सिस्टर्स, हमें जब उनको हम माफ करेंगे, हम इस बात में खुशी मनाएंगे, तो कोई पता नहीं, प्रभु चाहे तो वो हमारे जो आज दुश्मन है हमारे बेस्ट फ्रेंड बन जाए, और इसके अलावा स्वर्ग में हमारा इनाम भी इकट्ठा हो रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 7वां रीजन, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती की इंजील अध्याय 6 वर्स 19, डू नॉट स्टोर अप फॉर योरसेल्फ ट्रेजर ऑन अर्थ। प्रभु जी कहते हैं अपना धन, अपना खजाना इस धरती पे मत इकट्ठा करो, वेयर मॉथ एंड वर्मिम डिस्ट्रॉय, जहां पे कीड़े लग जाते हैं धन को, जहां पे जंगाल लग जाते हैं, एंड वेयर थीव्स ब्रेक इन एंड स्टील, जहां पे लोग चोर आके बंधक बना के दीवार तोड़ के लूट के ले जाते हैं। बट स्टोर फॉर योरसेल्फ ट्रेजर इन हेवन, लेकिन अपने लिए जो भी अपना खजाना है वो स्वर्ग में इकट्ठा करें। वेयर मोथ एंड वर्मिन डू नॉट डिस्ट्रॉय, जहाँ पे कीड़े और नहीं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, ना उसको जंग लग सकता है। एंड वेयर थीव्स डू नॉट ब्रेक इन एंड स्टील, जहाँ पे जो चोर है सेंध नहीं लगा सकते और उनको चुरा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कहते हैं वर्स नंबर 21 में, फॉर वेयर योर ट्रेजर इज देयर योर हार्ट विल बी आल्सो, जहाँ पे आपका दिल खजाना है वहां पे आपका दिल भी होगा। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अनदर थिंग टू एक्साइट टू गो टू हेवन इज दैट आवर ट्रेजर एंड आवर इनहेरिटेंस, हमारा खजाना और हमारी विरासत वहां जमा हो रही है। माय ब्रदर सिस्टर, कैसे जमा हो रही है? जब भी इस धरती की जो हमारी लाइफ है 60, 70, 80, 100 साल की, उसमें जब भी हम अपनी टैलेंट, अपना टाइम, अपना मनी और अपनी और रिसोर्सेस जब प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रभु के कलीसिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो माय ब्रदर सिस्टर वेस्ट नहीं गई है, वो समय वेस्ट नहीं गया, वो धन वेस्ट नहीं गया, वो टैलेंट वेस्ट नहीं गए।
उसकी वजह से स्वर्ग में हमारे लिए इनहेरिटेंस तैयार हो गया, इकट्ठा हो गया, और हमारा खजाना वहां तैयार हो गया। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, वही जगह है जहाँ पे ये चीजें सिक्योर रख सकते हैं। हमारा ट्रेजर, हमारे विरासत वहां पे सिक्योर्ड है, कोई भी उसको टच नहीं कर सकता, कोई भी वो हमसे छीन नहीं सकता। ईच एंड एवरी वन ऑफ अस हैज दिस इनहेरिटेंस, दिस ट्रेजर सिक्योर्ड इन हेवन। हालेलुया। सो माय ब्रदर्स सिस्टर, वी शुड बी एक्साइटेड। हम जब प्रभु के पीछे चलते हैं, हमें उत्साह होना चाहिए कि हमारा स्वर्ग में रास्ता ऑलरेडी मुकर्रर है, जगह ऑलरेडी मुकर्रर है, घर वहां पे बन रहा है। ये जगह टेम्परेरी है, ये धरती, ये संसार हमारे लिए टेम्परेरी है, ये पक्का नहीं है, यहाँ हमने हमेशा नहीं रहना। माय ब्रदर सिस्टर, जरा सोच के देखें, जब कोई इंसान टोरंटो में रहता हो, उसका घर टोरंटो में हो, और मॉन्ट्रियल उसे विजिट करने के लिए, घूमने के लिए जाना हो, उसने वहाँ पे बहुत सारा अच्छा सा होटल बुक किया हो। जब वो होटल पे जाए तो उस होटल को देख के उसका मन खुश हो, वहाँ का खाना खा के मन खुश हो। वो उस बात पे परमानेंटली खुश नहीं रहता। उसे पता है कि यहाँ मैं चंद दिनों के लिए आया हूँ, मेरा असली घर टोरंटो में है। उस घर की उसे खुशी ज्यादा होती है, ना कि उस होटल की, 5 स्टार होटल की जिसमें वो रह रहा है। इसी तरह माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हमें खुशी इस संसार में क्या हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। हमें खुशी होनी चाहिए स्वर्ग में, जो हमारा भवन है, जहाँ हमने जाके हमेशा की रहना है। माय ब्रदर्स सिस्टर, स्वर्ग ऐसी जगह है जहाँ पे ग्रेट रीयूनियन होगा। हम और आप फिर मिलेंगे। आज इस धरती पे हम इकट्ठे हैं, लेकिन एक एक करके हमने सब ने ये धरती छोड़ देनी है, हमने यहाँ से चले जाना है। लेकिन माय ब्रदर्स सिस्टर, द गुड न्यूज इज that we will reunion again in heaven। स्वर्ग में हम जाएंगे, हम ही नहीं, हमारे वो सारे दोस्त, वो सारे मित्र, वो सारे प्रभु के सेवक जिन्होंने हमें प्रभु के साथ जोड़ा, और जो शायद इस धरती पे आज नहीं है, वो भी हमें वहां पर मिलेंगे। वो सब रिश्तेदार मिलेंगे, सब दोस्त मिलेंगे, वो जिसने हमें बाइबल स्टडी कराई, बाइबल का ज्ञान दिया, जो आज धरती पे नहीं है, वो सब हमें वहां मिलेंगे। लेकिन इससे बड़ी बात एक और है खुशी की, जो मैं अब ये सोचता हूँ, सबसे बड़ी बात होगी कि प्रभु के वो सारे बच्चे जिनके बारे में हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं, एलाइजा, एलाइशा, मोसेस, वो सब वहां पे मिलेंगे। और मुझे जो पर्सनली ज्यादा खुशी है वो ये है कि मुझे पता है अपोस्टल पॉल वहां स्वर्ग में है, जिन्होंने न्यू टेस्टामेंट लिखा है। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, जब हम न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं, चाहे कोई भी कितना भी ज्ञानी भाई और बहन या प्रभु का सेवक हमें ज्ञान दे, वो ज्ञान नहीं दे सकता जो अपोस्टल पॉल दे सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो सबसे पहले मैं अपोस्टल पॉल को ढूंढूंगा, उनके पास जाऊंगा, चाहे उनके पीछे कितनी ही लोगों की क्यों लगी हो। अपने सारे क्वेश्चंस जो आज भी मेरे मन में उठते हैं, प्रभु का वचन पढ़ से उनसे पूछूंगा। माय ब्रदर सिस्टर, हेवन इज अमेजिंग प्लेस। स्वर्ग एक अद्भुत जगह है, वहां जाके आपका वापस आने को दिल नहीं करेगा। इट इज सो मार्वलस, सो ब्यूटीफुल। माय ब्रदर सिस्टर्स, स्वर्ग में एक ही तरह के लोग रहते हैं। जानते हैं कौन? वो जो गुड पीपल है, नो। वो लोग जो रईस है, नो। वो जो फेमस और सेलिब्रिटीज है, नो। तो कौन रहते हैं? माय ब्रदर सिस्टर, प्रभु का वचन जो आज आपने पढ़ा उसके आधार पे आइए समझे, वहां पे कौन रहते हैं? सिनर्स लाइक यू एंड मी। स्वर्ग में कौन रहते हैं? आप जैसे, मेरे जैसे वो पापी जिन्होंने अपने पाप का पश्चाताप किया और प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। वो सारे पापी जो अपाप रहित हैं, वो वहां पे हैं। माय ब्रदर्स सिस्टर्स, हमने जो यहाँ पे गलतियां की, यहाँ पे रहते हमारी जिंदगी इतनी अच्छी नहीं शायद हुई, लेकिन हमने को एक बात सिखाई गई, हमने जब भी गलती हुई, जब भी गुनाह हुआ, माफी मांगी, और जैसे ही हमने रिपेंट किया, परमेश्वर ने हमें माफ कर दिया। माय ब्रदर्स सिस्टर, अंत में एक छोटी सी सच्ची घटना आपके सामने लेके आता हूँ, और उसके बाद आज का कलाम खत्म करते हैं। जो लैटिन लोग हैं, उनमें एक रिवाज है। पुराने जमाने में ये रिवाज था। होता क्या था कि जब भी उनके किंग की डेथ होती थी, तो उसकी डेड बॉडी को जब फ्यूनरल के लिए लेके जाते थे, ब्यूरल के लिए लेके जाते थे, तो रास्ते में जो मोनास्टिक चर्च होता था, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं मठ होता था, जहाँ भिक्षु होते थे, वहां लेके जाते थे। तो जब उस शव को वहां लेके जाते थे, तो जो लोग होते थे वहां दरवाजा खटखटाते थे उस मठ का। तो अंदर से जो मठाधीश था, जो उनका हेड होता था, वो पूछता था, हु इज देयर, कौन है?
तो लोग कहा जाता था, मान लीजिए राजा का नाम कार्ल है, कहते थे दिस इज कार्ल द किंग ऑफ ऑस्ट्रिया, तो अंदर से आवाज आती तो मशाधीश की, आई डू नॉट नो दिस मैन। वो फिर दरवाजा खड़काते थे, 3 बार खटकाते थे, सेकंड टाइम फिर खटकाते थे, फिर अंदर से आवाज आती हु इज देयर, तो वो कहते थे दिस इज एम्परर कार्ल द एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया। फिर अंदर से आवाज आती आई डू नॉट नो दिस पर्सन। तीसरी बार जब वो खटखटाते थे तो अंदर से फिर आवाज आती थी हु इज देयर। इस बार वो ये नहीं कहते थे राजा कार्ल, वो कहते थे कार्ल। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दिस टेल्स अस व्हेन इट कम्स टू डेथ, जब हमारी मौत होती है, नो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इज गिवन टू एनीवन। जो ट्रीटमेंट एक राजा को दिया जाता है वही एक भिखारी को दिया जाएगा, जो एक मालिक को दिया जाएगा वही एक गुलाम को दिया जाएगा, जो रिच को दिया जाएगा वही एक पुअर को दिया जाएगा। एग्जैक्ट सेम ट्रीटमेंट होगा। दिस टेल्स अस दैट वी कैन नॉट कैरी एनी नेम, एनी फेम, एनी मनी टू हेवन। हमारा अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएंगे, जो कुछ यहाँ इकट्ठा किया वही रह जाएगा। हम तोहफे हमारे साथ जाएगा क्या? हमारे पास जाएंगे हमारे प्रभु यीशु, और जो हमने अपने प्रभु यीशु के लिए इस धरती पे किया, प्रभु यीशु हमारे साथ जाएंगे, और जो हमने इस धरती पे उनके लिए किया वही हमारे साथ जाएगा। बिकॉज वी आवर पोजेशन वोंट फॉलो अस बट दीज पोजेशन विल प्रीसीड अस। दुनियावी चीजें हमारे साथ नहीं जाएंगी, लेकिन जो प्रभु के साथ हमने समय बिताया, जो प्रभु के लिए काम किया, हमसे पहले वहां पहुंचे होंगे। यही प्रभु के वचन हमने पढ़ा था कि आवर ट्रेजर्स आर इन हेवन। सो माय ब्रदर एंड सिस्टर, वी ऑल शुड बी एक्साइटेड दैट दिस इज heaven where everything has been already planned and secured for us. My brothers and sisters, there is only one place. We have those rewards which will not be taken from us, which will remain with us for everlasting time. And that place is heaven, and we should be excited to go there because प्रभु के वचन ने आज में सिखाया है, heaven is our final destination. God bless you. God bless you. God bless you. इससे पहले कि आज की सभा हम खत्म करें, आओ आज दी अनाउंसमेंट्स देखने हैं। जिस तरह तुम जानते हो, हर संडे ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2:30 ਵਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਚ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਾਈਮ 2:30 PM ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਥਰੂ YouTube ਲਾਈਵ, और इसी तरह ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ until ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜਸ। और ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐਵਰੀ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜ਼ੂਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਟਸ ਏ audio meeting where people from all around the, not only Toronto but even from globe, even from some other countries, people join us। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੋ, we just want to serve you, so give us an opportunity to serve you। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਸੈਟਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਸਭਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਲਾਰਡਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। आओ सिर झुकाइए, अखा बंद करिए, प्रभु जी दी प्रार्थना लॉर्ड्स प्रेयर पंजाबी विच करिए। हे साडे पिता जेड़े स्वर्ग विच हो, तुहाडा नाम पाक मन्निया जाए, तुहाडा राज आए, तुहाडी मर्जी जेड़ी स्वर्ग विच पूरी हुंदी है जमीन उत्ते भी होवे। साडी रोज दी रोटी अज सानू दिओ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ
ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹਨ। ਔਰ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣੀਏ। The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੀਸ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਰਸਾਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣਾ, ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਅਗਸਤ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤਾਇਤ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਵਰਸਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਦੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਸਲੋਗਨ ਬੋਲਾਂਗੇ, प्रभु यीशु जिंदा है।